good afternoon, everybody. So, am I audible to all of you? So, once again, I welcome all of you in today's current affairs session. Okay, today we are in the 18th of November. Okay, yeah. So, 18th November 2025. Okay, so today again I have selected some very good articles, very informative articles from the Hindu newspaper. Okay, so I will be taking you through all the analysis of all those articles. Okay, what is important to note, I am again telling you that whatever I have told you prior to this in some topics in past, like one topic is special intensive revision of electoral rules. Okay, so on that topic, whatever I have told you must remember that, and whatever I will give updates today, you have to take those updates in that very topic only. Okay, so this much is clear to all of you. Okay, so today I will be taking few very interesting topics in the Hindu newspaper, and you must at least remember that these topics are very important for all of you. Okay, because I am very selective when I choose the topics for discussion. Why I am so selective in choosing topics for discussion? Because otherwise newspaper are any newspaper is about 20-25 pages. Okay, so you need not to read all the pages. I am doing the work for you. I am selecting the requisite amount of topics which you need to study and which you need to remember. Okay, so the first topic is about, you know, a death sentence to Prime Minister of Bangladesh. Okay, it is regarding death sentence to PM and Home Minister of Bangladesh. Why it is important? It is important because in this, one important treaty related to India is invoked. Okay, that is the extradition treaty of 2013. Okay, because both of them are currently in asylum in India. Okay, so death sentence to these two people, very important to note because of the treaty. Okay, this is the first topic which I will be taking. Okay, the topic number 2 which I will be taking is basically about human wildlife contact. Human wildlife conflict. If you remember, on 17th, I took a topic on human wildlife cooperation, human and other species cooperation. So today it is about conflict, okay, and how this conflict is to be declared as a natural disaster. Why? Because a lot of relief measures are to be taken for the victims. This is the second topic which I will take. Then the third topic I will take is related to disqualifications of the members of legislature. Okay. Sorry for the interruption. Okay. Yeah. So next topic which I will be taking, it will be related to disqualification of members of state legislature, and which is related to defection. So technically I will be taking up anti-defection law. Anti-defection law in light of the recent issue of defection prevalent in Telangana, which is going on in Telangana. Okay, so I will be discussing this also with you people. Okay, after this third case of disqualification, I will take the fourth case of pendency of cases in judiciary. Okay, which is very important for judicial reforms also. Okay, so pendency of cases in judiciary. Pendency of cases in judiciary. Okay, I will take up this topic also. Okay, after this, I will be taking next few more topics which are related to social audit. The fifth topic which I will be taking, social audit, because recently there have been demands for from various agencies regarding social audit of special intensive revision 2.0. Okay, which is being planned in 12 states and union territories. Okay, so I will talk about social audit also. After this, I will talk about one more important topic that is regarding apex court, reservation. Then I will talk about reservation in Maharashtra, reservation case in Maharashtra in favor of OBCs. Okay, this reservation I will also talk, and then finally I will talk about forest rights and tribal housing. Forest rights and tribal housing. Very important for your social issues.
forest rights and tribal housing. Okay, then if time permits, a small discussion I will, very very important topic, the eighth one, it is related to increasing trade deficit. Why trade deficit is increasing in our country. Same article is also covered by The Hindu, but I liked the way it is also covered by Indian Express. I liked the way Indian Express has covered, and I will discuss in light of Indian Express and The Hindu, both of them. ठीक है, तो इतना ये सारे 8 टॉपिक्स मैं आज डिस्कस करूंगा. सो आप अपना पेन कॉपी नोटबुक लेकर जो भी बैठते हैं बैठ जाइए. कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कोई भी डाउट हो आप वहां पे पूछ सकते हैं. मैं नेक्स्ट वाली क्लास में उन डाउट्स को भी क्लियर किया करूंगा, क्योंकि दिस इज द ओनली वे अभी हम इसको इंटरेक्टिव बना सके. मे बी लेटर ऑन हमारा लाइव इंटरेक्शंस भी हो पाए. ठीक है, सो दिस इज वेयर आई विल फोकस टुडे. ठीक है, चलो शैल आई स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. ठीक है, चलो फर्स्ट टॉपिक क्या है. रिसेंटली डेथ सेंटेंस हैज बीन अवॉर्डेड. Death sentence has been awarded to the ex-Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. शेख हसीना को अभी डेथ पेनल्टी अवार्ड हुई है, और वहां के उस टाइम के होम मिनिस्टर जो हैं उनको भी डेथ पेनल्टी जो है वो अवार्ड की गई है. वहां के एक स्पेशल इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल जो वहां का है बांग्लादेश का, उसने. ठीक है, होम मिनिस्टर असदुद्दीन जमान, Asaduddin Zaman. Okay. So these two people have been put on death sentence. लेकिन अगर आपको पता है कि इनके केसेस क्यों डेथ सेंटेंसेस के लिए रिकमेंड किए गए थे और ट्रायल डेथ सेंटेंस के लिए क्यों किया गया और डेथ सेंटेंस अवार्ड क्यों किया गया, इनके खिलाफ जो है जो केसेस थे दे वर रिलेटेड टू क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. कैसा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. 2019 से वहां पे क्राइसिस चल रही थी. लॉट ऑफ डिमांड्स फ्रॉम द स्टूडेंट साइड वर इमर्जिंग विच वर नॉट एड्रेस्ड वेल इन टाइम. ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या हुआ 2024 में, वो द स्टूडेंट प्रोटेस्ट टर्न्ड वेरी वायलेंट. ओके, द government of that time could not handle them very well, so lot of deaths of students took place. So student unions, student associations का demand consistently था कि इनका डेथ जो है वो, इनका जो है डेथ सेंटेंस अवार्ड किया जाए. ठीक है, और उस टाइम पे जो वहां के इंचार्ज वहां पे इंचार्ज आईजीपी थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिनका नाम है अब्दुल्ला अल ममून. ओके, अब्दुल्ला Al Mamoon. No need to remember these names. I'm just telling you for sake of information. Abdullah Al Mamoon, जो वहां के उस टाइम पे IGP थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, he accepted in open court that he was involved and government's involvement has also been clarified by this person. So this person has been given 5 years imprisonment. 5 years imprisonment, whereas these individuals have been given death sentence. Now, which tribunal? It is called as special tribunal. A special tribunal. Okay. Now see how karma plays an important role. Karma plays an important role. Okay. This special tribunal was set up by Sheikh Hasina herself. Okay. Somewhere in 1990s. Okay. Why she set up this why she set up this tribunal? She said that we will trial those people who have done anti-national activities during the 1971 war with Pakistan. 1971 when Bangladesh liberation movement was going on. So basically what newspaper writes is that her intention was to try those people who are in opposition and they will be charged for being anti-national during the war situations. So special tribunal was set up to try those people, anti-national activities. Okay, but now this tribunal only handed over death penalty to Sheikh Hasina. So this is the these are called cycles of life. Okay, what goes around comes around. Whatever you do, that will be returned in one or the other form. Please remember this. Okay, कभी भी
ऐसा कुछ नहीं करना जो तुम बाद में टॉलरेट ना कर सको। साइकिल्स ऑफ लाइफ जो है, साइकिल जिसको बोलते हैं कर्मा, ठीक है। सो कर्मा का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कर्मा पनिशेस द रॉन्ग डूअर्स, ठीक है। तो सेम हैपेंड विद शेख हसीना दिस टाइम। ओके, नाउ ये दोनों लोग, शेख हसीना और असदुद्दीन जमान, ये कहां पे हैं? ये इंडिया में है। क्यों? बिकॉज दे आर इन ए पॉलिटिकल एजाइलम, वो वहां से भागे हुए हैं और यहां पे उनको शरण मिली हुई है, ठीक है। लेकिन वहां की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसने इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री को अर्ज किया है कि इन दोनों को तुरंत वापस किया जाए। अब हम वापस करेंगे या नहीं करेंगे, हम वी आर बाउंड टू रिटर्न देम अंडर वन ट्रीटी एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ऑफ 2013। ओके, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ऑफ 2013। ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत हमको इनको वापस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली कौन से हैं? दीज आर दोज पीपल हु हैव कमिटेड एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस। इस ट्रीटी में एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस का डेफिनेशन है। एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस, ऐसा ऑफेंस जिसके लिए हमको उन्हें वापस भेजना ही पड़ेगा। एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस, एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस की डेफिनेशन क्या है? कोई भी ऑफेंस जिसमें एक इंडिविजुअल को कन्विक्शन हुआ हो और एक साल का इंप्रिजनमेंट हो। एनी ऑफेंस कैरिंग ए सेंटेंस ऑफ 1 year imprisonment और मोर। तो अब इनके साथ तो हो गया है प्रॉपरली, 1 year डेथ सेंटेंस अवार्ड हो चुका है इनको। तो अगर 1 year डेथ सेंटेंस अवार्ड हो चुका तो इस ट्रीटी के तहत हमको उनको भेजना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रीटी हमने साइन की बांग्लादेश के साथ 2013 में एंड इट वाज अमेंडेड इन 2016। प्लीज रिमेंबर दिस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंदर इनका एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस है। यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस में फाइनेंशियल ऑफेंसेस आते हैं। मान लीजिए किसी इंसान ने कोई फाइनेंशियल क्राइम किया अपनी कंट्री में, तो जैसे नीरव मोदी का एक फाइनेंशियल ऑफेंस है इंडिया के अंदर, और वो बाहर इस समय किस रूप में रह रहे हैं? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या कहती है कि दोज पीपल हु आर इन एजाइलम, हु आर लिविंग आउटसाइड द कंट्री, अगर उन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उस कंट्री के साथ हमारी, तो उस कंट्री को उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा। तो अब इंडिया का क्या स्टैंड है इस पे? इंडिया कहती है, इंडिया फॉरेन मिनिस्ट्री रिस्पॉन्डेड कि वी विल टॉक टू ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड देन वी विल टेक आवर स्टैंड। स्टेक होल्डर्स मीन्स गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, करंटली जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, उनसे बात करेंगे। सो वी विल टेक अप द मैटर एंड देन वी विल डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So this is all you need to know about this death sentence to Prime Minister of Bangladesh and Home Minister of Bangladesh, ठीक है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की वजह से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक हो गया। दूसरा है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ये कौन सी सिचुएशन होती है? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जब हम वाइल्ड लाइफ को क्या करते हैं, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कौन सी सिचुएशन होती है? ये ऐसी सिचुएशन होती है जब ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ एक दूसरे के सामने आए और वायलेंटली बिहेव करे, ठीक है। इफ यू रिमेंबर अबाउट द इंडो पैसिफिक हम्प्ड डॉल्फिन I have talked the other day, और ब्लू डॉल्फिन और चाइनीज व्हाइट डॉल्फिन, सेम नेम। तो वहां पे हमने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोऑपरेशन दिखाया। यहां पे आई विल टेल यू अबाउट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। यू माइट हैव हर्ड सो मेनी टाइम्स bear attacks, cases of bear attacks or cases of attacks of leopard. Okay, what is that? That is human wildlife conflict. Or sometimes human harming the wildlife. So many elephants usually got killed on railway tracks and around. That is human wildlife conflict. Now what is the case recently क्या मसला है इसमें ये इशू है कि अभी तक ये वाला जो है इसको डिजास्टर तो मानते हैं हम, क्योंकि जब भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है या वाइल्ड लाइफ डैमेज हो जाती है या ह्यूमंस का डैमेज होता है, और कभी कभी डैमेज बियॉन्ड रिपेयर होता है। डेथ ऑफ द ह्यूमंस आल्सो टेक प्लेस ड्यू टू बियर अटैक्स और लेपर्ड अटैक्स, ठीक है। तो इसको डिजास्टर तो मानते हैं हम, लेकिन इसको हमने नेचुरल डिजास्टर अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, और इसको नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर करना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। क्यों नेचुरल डिजास्टर इसको डिक्लेयर करना है? क्योंकि
जब ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, इसमें जो भी हार्म हो, ह्यूमन का हो या एनिमल का हो, उसके लिए कोई कंपनसेशन रूल्स नहीं है, कोई कंपनसेशन रूल्स नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर करना है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, टू एंश्योर रिलीफ एंड कंपनसेशन टू द अफेक्टेड इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। ओके, टू एंश्योर relief and compensation to affected individuals and communities। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को क्या मिल सके, एम्पल रिलीफ और सपोर्ट मिल सके, इसलिए हमको क्या देना पड़ेगा, इसका नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सारी स्टेट्स को ये गाइडलाइन दिया है। अब ये क्यों गाइडलाइन मेनली दिया है, मेनली ये गाइडलाइन दिया है किस सेंस में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहां पे ऑफनली देखा जाता है कि बंगाल टाइगर या जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ऑफनली देखा जा रहा है कि ह्यूमंस जो है वो हैबिटेशन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, किनका, टाइगर्स का, ठीक है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहां पे है, ये एक आपका प्रीलिम्स का इकोलॉजी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन बनता है। ये उत्तराखंड में है, कहां पे है, उत्तराखंड में, ठीक है। और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है, इसका नाम जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्यों है, क्योंकि जिम कॉर्बेट के नाम से है ये। जिम कॉर्बेट वाज ए हंटर, ये एक वाइल्ड लाइफ हंटर था, लेटर ऑन ही टर्न्ड आउट टू बी अ कंजर्वेशनिस्ट, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट के नाम पे ये नाम दिया गया है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। इसके अलावा वहां पे बहुत ज्यादा क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। लेकिन यहां पे इस समय इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये चल रहा है। तो इसकी वजह से अब ह्यूमन को तो कोई लॉस नहीं हो रहा, लेकिन वाइल्ड लाइफ को लॉस हो रहा। तो बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन शुड बी लायबल टू कंपनसेट फॉर दैट, गेट द पॉइंट, या उससे उनको रोका जाना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, इसके अराउंड थोड़ा एरिया जो है उसको क्या डिक्लेयर करो, कोर जोन। कोर जोन मींस जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी टोटली प्रोहिबिटेड है, और थोड़ा उसके एडिशनल एरिया ले लो जिसको आप बफर जोन डिक्लेयर करो, ठीक है। और बफर जोन डिक्लेयर करने के लिए बफर जोन डिक्लेयर करने से क्या होगा, इसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होगा, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है अभी उत्तराखंड की गवर्नमेंट को। और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस कहा गया है कि 3 मंथ्स के अंदर कंप्लायंस रिपोर्ट जारी करो, 3 मंथ्स के अंदर कंप्लायंस का टाइम देना है, ठीक है। अब ये केस स्टडी बन गई आपकी किस चीज के लिए, जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए। देखो, आपको लिंक करना, आपने सुना होगा आंसर्स को लिंक करना पड़ता है। अब लिंक करने के लिए क्वेश्चन जुडिशियल एक्टिविज्म का है। मैं आपको एक एनवायरमेंटल इशू पढ़ा रहा हूं, और एनवायरमेंटल इशू को हम इसमें लिंक कर सकते हैं इजीली, कि ये जुडिशरी का एक्टिव प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रही है जुडिशरी, किस चीज के लिए, कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए, ठीक है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए केस स्टडी डाल सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। अच्छा, हमारे यहां पे वाइल्ड लाइफ के लिए एक स्कीम चल रही है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ठीक है। कौन सी स्कीम चल रही है, द नेम ऑफ द स्कीम इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ठीक है। दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, central government taking complete expenditures, integrated development of wildlife habitats, okay. It is a centrally sponsored scheme for development and preservation of habitats for the wildlife, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सेज कि आप जो एक्सग्रीशिया अमाउंट है इसी स्कीम के अंडर फिक्स कर दो, अप टू 10 लाख रुपीस, अप टू 10 लाख, किनके लिए, फॉर विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। इतनी छोटी सी बात है इस आर्टिकल के अंदर, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छी चीज जो सिखाई वो ये सिखाई कि कैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस करना है अक्रॉस द सब्जेक्ट। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट की एग्जांपल आपको कहाँ पे कोट करनी है, यू हैव टू कोट दिस एग्जांपल इन योर पॉलिटी ऑल्सो, यू कैन इन गवर्नेंस ऑल्सो, कि कैसे गवर्नेंस में स्टेट प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है, समझ में आ गया आपको। सो दिस इज ऑल विच वॉज गिवन in this article, so please you
जस्ट गो थ्रू द आर्टिकल, यू विल गेट टू नो। हाँ, पीडीएफ भी आई विल शेयर। आई होप आप सब लोगों को पीडीएफ ग्रुप में मिल जाती होंगी, या मैं ये कह दूंगा टीम से कि वो आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दे। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज डिस्क्वालिफिकेशंस। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर्स। लेजिस्लेटर्स कौन होते हैं? लॉ मेकिंग बॉडी के मेंबर्स, लेजिस्लेटर्स। व्हेन आई से लेजिस्लेटर्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, जब मैंने लेजिस्लेटर्स बोला तो मैं किन की बात कर रहा हूं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट लेजिस्लेटर्स इन केस ऑफ स्टेट्स। कौन होते हैं? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ वहां होते हैं जिस लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस हो स्टेट में। ठीक है, और लेजिस्लेटर्स एट द सेंटर आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सिंपली एमपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें मेंबर ऑफ लोकसभा एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये इनके ऊपर एक लॉ बनाया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इज कॉल्ड एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, जब मैं बाइलिंगुअल जा रहा हूं तो मेरी लैंग्वेज में कोई इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, मेरे अल्फाज सही नहीं हो सकते, तो जज्बात पे जाने की जरूरत है। ठीक है, जब भी कभी जिंदगी में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो जाए, ठीक है, अल्फाज और जज्बात, ठीक है, जब इन दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है तो अक्सर अल्फाज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जज्बात इंसान से गलती भी करवा सकते हैं। सॉरी, अल्फाज जो है वो गलत भी निकल सकते हैं, लेकिन जज्बात जो होते हैं वो हमेशा प्योर एंड क्लियर होते हैं। ठीक है, सो डोंट एवर गो ऑन वर्ड्स, गो ऑन इमोशंस वेन एवर देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्ड्स एंड इमोशंस। गेट द पॉइंट? ओके, सो एंटी डिफेक्शन लॉ, ये लॉ हमारी कंट्री में क्यों आया? क्योंकि 1960s में हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ। पीपल स्टार्टेड गेटिंग इलेक्टेड ऑन टिकट ऑफ वन पार्टी। एक पार्टी से इलेक्शन लड़े, जीते, फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने लगे, गवर्नमेंट्स अनस्टेबल होने लगी। ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी रिसीव करके दूसरी पार्टी में चले गए, मेंबरशिप छोड़ के, गवर्नमेंट खत्म। गेट द पॉइंट? सो एक एक मेंबर्स पे कभी कभी गवर्नमेंट का डिसीजन होता है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक वोट से किसी रोज जो है डिफिकल्टी में आई हुई है। ठीक है, व्हेन मुफ्ती मोहम्मद सईद फ्रॉम जम्मू कश्मीर वाज द होम मिनिस्टर। समझ रहे मेरी बात को? तो इसका ये मतलब है कि उस टाइम पे ये जरूरी है कि लेजिस्लेटर, लॉ मेकर जो है वो स्टेबल रहे, जिस पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ा है उसी में रहे, या कम से कम इंडिपेंडेंट लड़ा है तो कोई पार्टी ज्वाइन ना करे। ठीक है, और पार्टी के डायरेक्शंस के साथ चले। तो इसका मतलब क्या है कि ये फेयर पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस जो है मेंटेन करेगा, ये किसी को मनी के इन्फ्लुएंस में आके कुछ गलत करने से रोकेगा। लेकिन 1960s में फॉर्मली उस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? आया राम गया राम। आया राम गया राम ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया। अपनी चॉइस से पीपल स्टार्टेड लीविंग द पार्टी, पीपल स्टार्टेड कमिंग टू द पार्टी, ज्वाइनिंग बैक द पार्टी। इसलिए देयर वाज अ नीड एंड फाइनली इट वाज 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1985 में एक शेड्यूल ऐड किया गया जिसका नाम है 10th शेड्यूल। ठीक है, 10th शेड्यूल ऐड किया गया एंड 10th शेड्यूल का टाइटल क्या रखा गया? एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन के अगेंस्ट जो कानून है ये। ठीक है, ना व्हाट इज डिफेक्शन? डिफेक्शन मतलब इट इज ए माल प्रैक्टिस। ठीक है, माल प्रैक्टिस ऑफ गेटिंग इलेक्टेड ऑन टिकट ऑफ पार्टी ए एंड देन लेटर ऑन ज्वाइनिंग पार्टी बी, 1. Number 2, getting elected independently and joining a party later on. Number 3, when party whip says to vote in a particular direction, you either abstained from voting or you decided not to vote. Okay, so 3 चीजें मेनली है डिफेक्शन में। 3 चीजें क्या क्या आती हैं? डिफेक्शन इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, ए, बी एंड सी। ए, abstaining from voting or voting against the party whip, voting against the party whip, WHIP, whip. Please remember this word whip. Whip का क्या मतलब होता है? Whip is an official or office in every political party's organization. whip का काम होता है पार्टी के मेंबर्स को डायरेक्शन देना,
कितना अटेंडेंस में इंश्योर करना है, पार्टी के बिहेवियर को, डिसिप्लिन को कंट्रोल करना लेजिस्लेचर के अंदर विप का काम होता है। विप ने कह दिया आज सभी प्रेजेंट रहेंगे और इस तरीके से वोटिंग करेंगे, या तो आप एब्सेंट रहे, वोटिंग नहीं किया, या प्रेजेंट भी थे और वोटिंग करने से मना कर दिया, या आपने उस डायरेक्शन में वोट कर दिया जहां आपको पार्टी ने नहीं कहा था, तो इससे भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। दूसरा, ज्वाइनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, any political party after getting elected as independent, अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्ट हुए और आपने कोई पार्टी ज्वाइन कर लिया तो यू आर लायबल टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि आपने डिफेक्शन किया। ठीक है। तीसरा, joining any other party after getting elected on the ticket of some other party। कोई अदर पार्टी के टिकट पे आपने क्या किया, इलेक्शन जीता और फिर आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। इससे क्या होता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट टू द इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट ने आपको एक आइडियोलॉजी से वोट किया और आपने कल जाके वो आइडियोलॉजी छोड़ के दूसरी आइडियोलॉजी में चले गए। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट टू द इलेक्टोरेट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट टू द पार्टी एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट टू द सिस्टम। इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया ताकि ये आया राम गया राम वाले ट्रेंड को अरेस्ट किया जाए। ठीक है। लेकिन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक प्रोविजन था। प्रोविजन ये था कि इफ 1/3 members quit a party, this is not defection। मीन्स आपको अब अकेला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खरीदना नहीं है, आपको हॉर्स ट्रेडिंग मींस जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इधर उधर स्विच करते हैं पार्टीज वगैरह गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए अंडर डिफरेंट ग्रीड ऑफ डिफरेंट काइंड्स, पावर, पोजीशन, पोर्टफोलियो, मनी, कई सारी चीजों की लालच जब मिले और अगर कोई भी 2-4 लोग एक साथ निकल जाए एक पार्टी से, सपोज 10 लोग हैं एक पार्टी में और 10 में से अगर 4 निकल गए, दिस विल नॉट बी डिफेक्शन बिकॉज मोर देन 1/3 हैव लेफ्ट द पार्टी, दिस इज नॉट डिफेक्शन। तो फिर भी अब आया राम गया राम ट्रेंड चेंज इनटू आए राम गए राम, बहुत सारे प्लूरल आए राम गए राम। ठीक है, लॉट ऑफ पीपल। ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, विच वॉज 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। कौन सा? 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 91st, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डेटा। सो फाइनली हमने क्या किया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इनेक्ट किया 2003 में। और इस एक्ट में हमने क्या कहा कि 1/3 अगर करेंगे तो वो डिफेक्शन होगा, 2/3 अगर करें तब डिफेक्शन नहीं होगा। मीन्स इफ 2/3 members quit, this will not be defection, ये डिफेक्शन नहीं होगा और इस पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। इसलिए अब आपको 1/3 ऑफ द पार्टी जो है खरीदनी है अगर आपको हॉर्स ट्रेडिंग करना है। व्हाट इज हॉर्स ट्रेडिंग? इट इज अ माल प्रैक्टिस इन लेजिस्लेटर्स अमंग द लेजिस्लेटर्स व्हेन दे स्विच द साइड्स फॉर गेटिंग इनटू द गवर्नमेंट और टेकिंग ह्यूज एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट काइंड्स। गेट द पॉइंट? अब ये इस समय न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है कि तेलंगाना के एक साहब हैं। ठीक है, तेलंगाना के एक साहब हैं जो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट इसको किस केस में सुन रहा है? ठीक है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट इसमें किस केस में सुन रहा है? पी.के. रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना केस। पी.के. रेड्डी, ये केसेस जो है आपके पॉलिटी के आंसर्स को वंडरफुल बनाते हैं। वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, पी.के. रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। ठीक है, पी.के. रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना केस 2025। ये केस क्या है? एक साहब थे जो तेलंगाना की एक लोकल पार्टी में पहले मेंबर थे। ठीक है, वहां से इलेक्ट भी हुए। वहां से जब ये इलेक्ट हुए, इलेक्शन होने के बाद
इन्होंने क्या करा, अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, ठीक है। ये भारत राष्ट्र समिति BRS से इलेक्ट हुए। मेंबर फ्रॉम BRS हैज लेफ्ट द पार्टी एंड ज्वाइंड कांग्रेस, एंड कांग्रेस की ही गवर्नमेंट है तेलंगाना के अंदर, ठीक है। सो ही हैज डिफेक्टेड टू द रूलिंग पार्टी नाउ। अब रूलिंग पार्टी का ही स्पीकर है, तो स्पीकर इसके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन की कार्रवाई नहीं कर रहा, स्पीकर इसके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन की कार्रवाई नहीं कर रहा, ठीक है। GP कुमार, हाँ, गद्दम प्रसाद कुमार, नेम ऑफ द पर्सन, गद्दम प्रसाद कुमार। व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन? गद्दम प्रसाद कुमार, ठीक है। गद्दम प्रसाद भाई ने क्या किया काम? गद्दम प्रसाद भाई ने डिफेक्शन किया कांग्रेस की तरफ, ठीक है। और स्पीकर ऑफ तेलंगाना, याद रखना, स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिफेक्शन। इस केस में स्पीकर के पास क्वाजी जुडिशियल पावर्स होते हैं। स्पीकर ऑल्दो इज नॉट ए जज, but in this case acts as a judge, and he has the power to disqualify a member from the legislature, from the basic membership of the legislature, अगर उसको पता चला कि इसने डिफेक्शन किया है। लेकिन स्पीकर क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा केसेस डिले करते हैं। क्यों? क्योंकि सेम पार्टी में ज्वाइन किया जिस पार्टी में वो है। हालांकि स्पीकर का रोल हैज टू बी वेरी वेरी न्यूट्रल। गेट द पॉइंट? तो स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कह दिया कि यू हैव 3 months ऑफ टाइम, you have 3 months of time to start inquiry and to take a decision on the cases of defection and disqualification. अब उसमें से भी काफी टाइम निकल गया। 31st December has been the deadline given by the judiciary. 31st December। जुडिशरी के स्टेटमेंट्स बहुत ही डेंजरस। क्या स्टेटमेंट है? स्पीकर ऑफ तेलंगाना असेंबली विल डिसाइड वेयर ही हैज टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर। अब ये नहीं बताया कि न्यू ईयर मतलब असेंबली में रहते हुए सेलिब्रेट करना है या खुद ही असेंबली से बाहर होना है। क्योंकि अगर वो नहीं मानते ये केस, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को, वेन एवर द जुडिशियल डायरेक्शंस आर नॉट ओबेड, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ग्रॉस कंटेम्प्ट, डेलिबरेटली जब क्लियर डायरेक्शंस कोर्ट से मिले और आप उनको डिसोबे कर रहे हो, इट इज अ क्राइम। अदरवाइज फिर जुडिशरी की पावर क्या रह जाएगी? समझ रहे मेरी बात को? सो जुडिशरी हैज गिवन clear directions, and the judiciary has also said that कि आपका जो ये फाइनल, आपका जो डिसीजन होगा डिस्क्वालिफिकेशन में, डिफेक्शन की केस में, डू यू फील दैट यू आर अबव जुडिशरी एंड डू यू फील दैट इट इज बियॉन्ड आवर कॉम्पिटेंस, वी कैन ऑल्सो रिव्यू इट। सो इट इज अंडर द decision of speaker is challengeable in judiciary, challengeable in judiciary means it falls under the purview of judicial review. Okay, get the point? So this is all you need to understand about judiciary, judicial activism and disqualification and anti-defection law. Okay, I hope it is clear to all of you. Okay, moving ahead, now I will go to another topic, very very important topic, big problem in Indian judiciary, that is pendency of cases in judiciary. आज का द हिंदू का एडिटोरियल है, ठीक है, पेंडेंसी इन जुडिशरी, pendency of cases in judiciary, or mainly lower judiciary has been focused, mainly lower judiciary has been focused. When I say lower judiciary, I mean India follows the principle of what? In India हमारे पास क्या है? हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या है इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट? What do you mean by integrated judiciary? Integrated judiciary means on top you have Supreme Court, below Supreme Court you have High Courts, and below High Court you have the subordinate courts. You have the subordinate courts. Subordinate courts में आते हैं district courts and the municipal courts. Municipal courts, ठीक है। District courts की हालत ये है कि around 4.6 crore cases are pending. Cases are pending. Huge mess in judiciary. अब इसमें बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है और रेमेडियल मेजर्स क्या है, ये इस आर्टिकल में बताया है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये रिपोर्ट किसकी है। इट इज नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। दिस रिपोर्ट इज ऑफ नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड,
नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की ये रिपोर्ट है कि हमारे जुडिशरी के अंदर में कितने केसेस पेंडिंग है इस समय, 4.6 करोड़, विच इज एक्चुअली अ वेरी वेरी बिग अमाउंट, ह्यूज अमाउंट. गेट द पॉइंट? Okay, now what is to be done? It has to be said that there are few problems. Earlier, lawyers who had 5-10 years experience, they used to be appointed at municip level, and then they had huge amount of experience of doing and disposing the work very quickly. So lack of training and experience, lack of training and experience at lower judiciary level. Okay, ये चीज आप हायर जुडिशरी के लिए नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशंस में कितना एक्सपीरियंस रखा गया है. ठीक है, सो लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. ठीक है, और इसमें ये भी बताया गया अर्लियर एन एडवोकेट हु इज 5-10 years ऑफ एक्सपीरियंस देन कम्स टू जुडिशियल पोस्ट्स, एंड then there are archaic laws governing the jurisprudence. हमारा jurisprudence, हमारा जो जुडिशियल मैकेनिज्म है वो बहुत ही पुराने लॉज से गवर्न है. उसको कहते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. क्या कहते हैं? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. एंड ऑल्सो वन मोर, देयर इज civil rules. They are of 1908, although they have been amended 2 times, 1976 and 2003. लेकिन यहां से आगे भी अगर आप देखोगे, earlier 22 years ago they have been amended. एंड इसमें जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है वो बड़ा लेंथी प्रोसीजर है. ठीक है, उसके अलावा दूसरा एक प्रॉब्लम ये बताया गया है, दूसरा प्रॉब्लम ये बताया गया है. ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम, द थर्ड प्रॉब्लम इज लैक ऑफ मिनिस्टीरियल स्टाफ. अब मिनिस्टीरियल स्टाफ नहीं है, मींस क्लरिकल स्टाफ नहीं है, तो उसकी वजह से जज को ही सारा काम करना पड़ता है. देखो मैं बताता हूं कैसे चलता है काम. ठीक है, सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं हमने केस फाइल किया, उसको जुडिशियल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सूट्स. हमने क्या किया? सूट फाइल किया. ठीक है, सूट फाइल करने के बाद जाता है नोटिस. किसको? जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया उसको कहते हैं रिस्पोंडेंट. नोटिस टू द रिस्पोंडेंट. फिर रिस्पोंडेंट क्या करता है? अपना एक लीगल एड हायर करता है, वकील, एडवोकेट. लीगल एड को क्या फाइल करना होता है? वकालतनामा फाइल करने के बाद फिर क्या होती है? फाइल, जो केस होता है, जो सूट होता है, उसकी ऑब्जेक्शंस फाइल होती है. ऑब्जेक्शंस फाइल होने के बाद फिर जाता है किसमें? आर्ग्यूमेंट में. किसमें जाता है? आर्ग्यूमेंट में. अब आप ये समझें कि इतनी सारी स्टेजेस में जज का कोई काम नहीं है. यहां से जज का रोल शुरू होता है. लेकिन हमारी कंट्री में क्या चल रहा है? ये सारे ये सारे काम जो है जज कर रहा है. नोटिस को समन्स भी कहते हैं. ठीक है, समन्स. ठीक है, ये सारे काम जज को खुद करने पड़ रहे हैं. अर्ली मॉर्निंग 10:30 जज ऑफिस में बैठता है, 2-3 बजे तक तो यही काम कर रहा होता है. फिर टाइम कितना बचता है सुनने के लिए? ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम गेट्स ड्रेन्ड ड्यू टू द लैक ऑफ द जुडिशियल स्टाफ, द मिनिस्टीरियल स्टाफ. सो इसमें रिकमेंडेशन भी एक दी गई है कि मिनिस्टीरियल स्टाफ मस्ट बी डिप्यूटेड. मिनिस्टीरियल स्टाफ एट lower judiciary is a requirement of the day. Get the point? So this one has also been highlighted. ठीक है, उसके बाद एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4. दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 4? प्रॉब्लम नंबर 3. ओके, प्रॉब्लम नंबर 4. प्रॉब्लम नंबर 4 इज lack of quality working time. वर्किंग टाइम जो है सारा
वो कहाँ चला जाता है? मिनिस्टीरियल वर्क में, जजेस का। तो जब सारा क्वालिटी टाइम आप मिनिस्टीरियल वर्क में दोगे तो आप केसेस को डिस्पोज करने के लिए कितना टाइम दे पाओगे? वेरी लेस टाइम यू कैन गिव। इसमें 3 केस स्टडीज। अच्छा, कंबरसम प्रोसीजर्स, 5th वन, कंबरसम प्रोसीजर्स। कंबरसम प्रोसीजर्स कि जुडिशियल प्रोसीजर जो है वो बड़ा कंबरसम है, इसलिए लोग क्या कहते हैं कि आपस में बाहर कंप्रोमाइज करना लोगों को आसान लगता है, लेकिन जुडिशरी से बचना चाहते हैं, जुडिशरी की तरफ जाने से क्या करना चाहते हैं? बचना चाहते हैं। ठीक है, क्यों बचना चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, हम अगर जुडिशरी में चले गए तो फंस जाएंगे। इसमें 3 केस स्टडीज जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस आर्टिकल में दी गई है। ठीक है, केस 1, 60 days notice on divorce petitions। डिवोर्स के बारे में whenever judge listens to a case, अब जज कन्विंस हो चुका है कि डिवोर्स इज द ओनली ऑप्शन, लेकिन रूल उन्हें यह कहता है कि यह जानने के बाद भी कि डिवोर्स इज द ओनली ऑप्शन, रिमेन साइलेंट फॉर 60 days। क्यों? हो सकता है उन 60 डेज में वो लोग फिर से रिकॉन्सिलिएशन कर लें, तो केस पेंडिंग हो गया 60 दिन के लिए। अच्छा, अगर उनको रिकॉन्सिलिएशन करना होता वो कोर्ट ही क्यों आते? कोर्ट में इतना टाइम, इतने लंबे अरसे से उनकी हेयरिंग चल रही है, इस टाइम पीरियड में भी वो रिकॉन्सिलिएशन कर सकते थे, लेकिन रिकॉन्सिलिएशन नहीं करते। ठीक है, उसके बावजूद भी कोर्ट उन्हें क्या दे रहा है? 60 दिन का और पीरियड दे रहा है, कूलिंग पीरियड, इसको कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। ठीक है, इसको कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। ठीक है, कूलिंग ऑफ पीरियड। ठीक है, तो इसकी वजह से और ज्यादा डिले एंड पेंडेंसी हो जाती है। तो इन ऐसे लॉज को क्या करने की जरूरत है? रिफॉर्म करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद एक एक्ट है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज कॉमर्शियल केस 2। नाउ आई एम डिस्कसिंग केस 2, कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट जो बिजनेस रिलेटेड डिस्प्यूट सुनता है, कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 12A। वो कहता है कि जब भी बिजनेस के अंदर कोई डिस्प्यूट हो तो 12 मंथ्स का इंटरमीडिएशन टाइम देना है। क्या देना है? 12 मंथ्स का इंटरमीडिएशन पीरियड। मींस वो आपस में ही मसला सुलझा लें। अगर इंटरमीडिएशन ही हो पाता तो वो कोर्ट क्यों आते? ठीक है, तो इस तरीके के लॉज कि क्या कहा गया कि अगर कभी भी मीडिएशन का पॉसिबिलिटी है तो इनको 12 मंथ्स का टाइम पीरियड दो। इसकी वजह से भी हमारे पास जो कई सारे केसेस हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं। ठीक है, केस नंबर 3 जो इस आर्टिकल में दिया गया है वो है रिलेटेड टू द रेंट एक्ट। केस नंबर 3 is related to न्यू रेंट एक्ट। केस नंबर 3 is related to न्यू रेंट एक्ट। ठीक है, न्यू रेंट एक्ट में क्या है कि जितने भी ये रजिस्टर्ड लीज है या रेंट है, इसकी जुरिस्डिक्शन किसके पास है? पहले होती थी जज के पास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, अब रजिस्ट्रार के पास है। और रजिस्ट्रार कौन है? जुडिशियल अथॉरिटी है या नॉन जुडिशियल अथॉरिटी है? हालांकि उसकी फाइनल इंटरप्रिटेशन आ चुकी कि एडमिनिस्ट्रेशन साइड से जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट लेवल के ऑफिसर होते हैं वो अब सब रजिस्ट्रार्स हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी कई सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस होते हैं। प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर करना है, कितना टाइम देना है ट्रांसफर करने के लिए, लीज के जो रूल्स हैं, दे आर ऑल कम्बरसम। तो कम्बरसम प्रोसेसेस में मैंने 3 केसेस आपको बता दिए, और इसी तरीके से कई सारी चीजें जो है वो इंपैक्ट करती है, कई सारी चीजें वो इंपैक्ट करती हैं। इसलिए क्या कहा गया कि सेम लेवल पे पेंडेंसी है हायर जुडिशरी में भी, लेकिन हायर जुडिशरी में मोस्टली प्रोसीजरल डिलेज होते हैं, ट्रेनिंग रिलेटेड डिलेज वहां पे कम होते हैं। जब वहां कोई केस फाइल हो गया उसके बाद उसके ऊपर बड़ा स्पीडी डिस्पोजल होता है, लेकिन केसेस ही इतने ज्यादा हैं कि आपको और जुडिशरी को एम्पावर करना पड़ेगा, मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा। दीज आर द रिफॉर्म्स विच आर रिक्वायर्ड। I hope it is clear to all of you. Okay. So now, next question, next topic, which is related to social audit. Next topic, which is related to very, very important topic, social audit. किस चीज का social audit? Social audit of Special Intensive Revision 2.0. बिहार के बाद ये Special Intensive Revision is proposed in 12 states and union territories, including Kerala. केरला में क्या चल रहा है?
एक बूथ लेवल ऑफिसर ने ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रेशर, बूथ लेवल ऑफिसर ने क्या करा, सुसाइड कर लिया। और सिंबॉलिक तौर पे कई सारे बूथ लेवल ऑफिसर्स, so many booth level officers have tied ropes around their neck as a symbol of protest against the special intensive revision 2.0. Okay, they say that it is a time taking exercise, it is a long exercise, and we need to do it very properly. Get the point? Okay. Now there is also, what are the issues related to special intensive review? I have already told you. Special intensive revision में issues क्या क्या है वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिए हैं। ब्रीफली मैं एक बार यहां पे फिर भी बता दूंगा। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, कई सारे लोग जो वोटिंग का राइट रखते हैं उनको वोटिंग का राइट छिन जाना, इसको कहते हैं डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। नंबर वन, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर वन। प्रॉब्लम नंबर टू, एडिशन of fake voters, addition of fake voters. Problem number 3, it is basically an unofficial citizen surveillance. citizens के ऊपर एक अनऑफिशियल टाइप का सर्विलेंस लग गया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए बहुत अनऑफिशियल लेवल पे, ठीक है। तो इसमें पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें कंटिन्यूअसली क्या कर रही हैं, आर्ग्यू कर रही हैं। तो अब एक बहुत ही विजडम वाला जो रिकमेंडेशन आया है कि इसका पहले सोशल ऑडिट कराओ, सोसाइटी से पूछो व्हाट इज सोशल ऑडिट नाउ, व्हाट इज सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट का मतलब जब नॉर्मल कॉमन सिटीजन या ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी किसी स्कीम को, किसी प्रोग्राम को, किसी एक्सरसाइज को चेक करते हैं, खुद उसका डिस्कशन करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स निकालते हैं और फिर उसके ऊपर एक जनरल ओपिनियन बिल्ड करते हैं कि क्या ये एक्सरसाइज सही है या एक्सरसाइज ये गलत है, ठीक है। अब यहां पे जो सोशल ऑडिट है, पहले मैं आपको वही चीज एक्सप्लेन करूंगा सोशल ऑडिट क्या है। सोशल ऑडिट एक ओपन और पार्टिसिपेटरी प्रोसेस होता है, ठीक है। एन ओपन एंड पार्टिसिपेटरी process in which individuals / groups / communities analyze the documents, okay, analyze the documents, records and other relevant material I am continuing here, pertaining to various schemes, programs or initiatives, okay, schemes, programs और initiatives, ठीक है। जब सिटीजन्स या ग्रुप्स या कम्युनिटी पार्टिसिपेट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, चीजों को वेरीफाई करते हैं ताकि वो चेक करें वो इसका पर्पस क्या है, सोशल ऑडिट का पर्पस क्या है, व्हाई सोशल ऑडिट इज इंपॉर्टेंट। सोशल ऑडिट हैज बीन हाईलाइटेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे बड़ी बात है कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इन वन आर्टिकल 243 क्लॉज जे sorry, Constitution under Article 243 Clause J and Clause A, 243 Clause A, legalize social audit. कि citizens have the right to keep maintain the government or to keep the government accountable. ठीक है, तो legalize social audit. Okay, then Comptroller and Auditor General of India, who audits the accounts and everything related to the country. CAG has also highlighted that social audit is a mandatory exercise. Social audit is a mandatory exercise. किस लिए? गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखने के लिए। अच्छा, सोशल ऑडिट किस लेवल पे होना चाहिए? गवर्नमेंट
अलग अलग लेवल्स पे करा सकती है, बट इट इज ऑफनली सेड दैट एट पंचायत लेवल, एट वार्ड लेवल, at grassroots levels, social audit is the most effective exercise. Social audit is the most effective exercise at these levels. Okay, and you know, in Rajasthan there has been a case, 7 lakh corrections were made in the voter list as a result of social audit. एक केस स्टडी इसमें जो हम लिखेंगे वो कौन सी लिखेंगे, राजस्थान की, ठीक है, अ केस स्टडी फ्रॉम राजस्थान, केस स्टडी फ्रॉम राजस्थान, 7 lakh corrections in voters list or electoral roll. This is electoral roll. Voter list or electoral roll, one and the same thing, in Rajasthan after social audit. अब वहां पे कोई जरूरत नहीं पड़ी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, सोशल ऑडिट से ही 7 लाख एंट्रीज जो है वो करेक्ट की गई, ठीक है। तो हमको ये इसलिए जरूरी है, सोशल ऑडिट इसलिए जरूरी है, सोशल ऑडिट से क्या बनता है, ट्रांसपेरेंसी, लोगों के सामने चीज होती है, पब्लिक स्क्रूटिनी, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक स्क्रूटिनी, अकाउंटेबिलिटी, अगर कहीं पे भी गलती हो public will hold you accountable, and it is very integral. Social audit is very integral for protecting India's electoral democracy. Social audit of special intensive review is integral for protecting the integrity of India's electoral democracy. For protecting the integrity of India's electoral democracy. इंडिया की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए सोशल ऑडिट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इवन not only at panchayat level, even at village level, that is at gram sabha level. This article also highlights कि social audit इस level पे भी कराया जा सकता है, at gram sabha level. Okay? I hope it is clear to all of you. Okay. So next important thing is that there is one important article related to reservation in Maharashtra. You know, in Maharashtra government is trying to provide reservation to other backward classes for the legislature. But what the civil right activists are saying that in Maharashtra, if you provide further reservation, it may breach the 50% quota. 50% quota of a reservation. Indra Sawhney case, in case of other backward classes, here one important case has been highlighted, that is Krishnamurthy case has also given the K. Krishnamurthy versus Union of India. Now everybody knows the Indra Sawhney case, but very less people say the Krishnamurthy case, which is also related to the 50% capping on reservation. You can give reservation to any class unless you cross the 50% limit on reservation. Here, Maharashtra government is planning to add more OBCs and give more reservation to OBCs. Already OBCs across the country are given 27% reservation. Okay, but if 27 quota reservation is applied to Maharashtra also, then the reservation will go beyond 20%, beyond 70%. Okay. Now, there was one commission that is called as J.K. Banthia Commission. Okay. J.K. Banthia Commission.
Please remember such names. Sometimes in matching UPSC asks such questions. J.K. Benthia Commission recommended 27% reservation. 27% reservation for OBCs. But if you remember, this is also the recommendation of Mandal Commission. But please remember, Mandal Commission for Educational Institutions and Government Services. This is for legislature, for OBCs in legislature. Now, if you give 27% reservation for OBCs in legislature, the total quota in Maharashtra will go above 70%. 70% से ऊपर चला जाएगा अगर आपने reservation को 27% कर दिया OBCs के लिए लेजिस्लेचर के अंदर. ठीक है, अभी ये स्टेट लेजिस्लेचर की बात वहां पे नहीं चल रही. इट इज इन लोकल बॉडी इलेक्शंस. इट इज इन लोकल बॉडी इलेक्शंस. ठीक है, तो ये प्लीज रिमेंबर जेके बेंथिया कमीशन रिपोर्ट, लोकल बॉडी इलेक्शंस. ओके, सो दिस जेके बेंथिया कमीशन रिपोर्ट is basically, if we accept its recommendation, then it will, violate the 50% capping for reservation, which is given in K. Krishnamurthy versus Union of India case, which is given in K. Krishnamurthy versus Union of India case. I hope it is clear. Is that clear? Okay. Now, one important topic is related to trade deficit. Related to trade deficit. Trade deficit. What is trade deficit? India's trade deficit has grown to an all-time high, record high. Okay, now what are the reasons? What are the reasons of this increase in the trade deficit? Okay, 12.4% it has increased. It has increased by 12.4%. Okay, first of all, यहाँ पे I want you to understand the concept of trade deficit. What is trade deficit? Economics में you might have heard the concept of deficit. Deficit means when something is surplus and something is is lesser than the required amount. Okay, see, we at global level do transactions with the world in the form of import and export. Okay, import and export of goods and services. Goods and services. Okay. Okay. Now, when import and export of commodities take place, if import is more, export is less, then it is called as trade surplus. Then it is called as trade surplus. Trade surplus का situation क्या है? When import is more than export. When export is more than import. Trade surplus. Okay, and trade deficit means a situation in Indian economy. Trade deficit, a situation in Indian economy when exports overgrow the imports. When there are more exports, just a second. Trade surplus means if we are exporting more and importing less. When exports are greater than imports, this is trade surplus. Trade deficit means when exports are less and imports are more. Recently, we have seen a surge in gold imports. Due to surge in gold imports during the festive season, the trade deficit has gone very, very high. Trade deficit of 12.4% is a huge trade deficit. Only 3% is tolerable. Only 3% trade deficit is tolerable. Okay. Now, अगर import ज़्यादा हो रहा था, तो हम export क्या कर सकते थे? Export भी बढ़ा देते तो balance हो जाता. लेकिन export क्यों नहीं बढ़ा पाए हम? Due to global trade disruptions. Global trade disruptions क्यों चल रही है? Because of the tariff wars started by Donald Trump 2.0. इसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले साल ये जो 12.4% मैंने आपको बताया, इट इज ऑन ईयर बेसिस. मींस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल
4% हो चुका ट्रेड डेफिसिट। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस हैज रिटन इट मोर ब्यूटिफुली। मेरा एक छोटा सा डिस्कशन इंडियन एक्सप्रेस पे शाम तक आ जाएगा, ठीक है, आप उसको देख लेना, वहां पे मैंने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है ट्रेड डेफिसिट के आर्टिकल को। तो अभी समझो कि जब भी एक कंट्री में एक्सपोर्ट्स कम हो जाए या इंपोर्ट्स, अगर इंपोर्ट्स बढ़ जाए या एक्सपोर्ट्स कम हो जाए, इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट हो सकता है, ठीक है। और हमारी कंट्री में क्या हो गया, इंपोर्ट बढ़ गया, एक्सपोर्ट ऑलरेडी रुक गया बिकॉज ऑफ ट्रेड वॉर, इसकी वजह से हमारी कंट्री में ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ गया, ठीक है। नॉट ओनली गोल्ड, गोल्ड का तो जो है वो हाई कॉस्ट की वजह से थोड़ा ट्रेड डेफिसिट में ज्यादा रोल है, अदरवाइज इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, मशीनरी। अच्छा, अभी अगर रिसेंटली आप देखेंगे, 2 दिन पहले एक आर्टिकल आया था कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हमने यूएसए के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया एंड वी विल बी इंपोर्टिंग नाउ एलपीजी फ्रॉम यूएसए। एलपीजी इंपोर्ट डील जो है हमारे किसके साथ, यूएसए के साथ, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। ओके, ऑल्सो सिल्वर भी हमने काफी ज्यादा इंपोर्ट किया, ठीक है। तो इन सारी चीजों की वजह से जो है हमारी कंट्री के अंदर इस समय ट्रेड जो है वो ट्रेड डेफिसिट जो है वो बड़ा इशू बन गया, ठीक है। उसके बाद वन मोर आर्टिकल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन, it is related to finance commission। फाइनेंस कमीशन जो है, वी आर करंटली इन 15th फाइनेंस कमीशन रिजीम, बट 15th फाइनेंस कमीशन जो है दैट इज गोइंग टू कमेंस फ्रॉम 1st अप्रैल 2026। अच्छा, क्या है ये फाइनेंस कमीशन? ये एक ऐसी बॉडी है जो क्या करती है, रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट को कि अपने रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाना है, ठीक है, हाउ टू ऑगमेंट द रिसोर्सेज, ऑगमेंटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ओके, देन sound financial and developmental strategy, इस पे ये क्या करती है, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है, ठीक है। और ये बॉडी क्यों बनाते हैं हम, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280 कहता है कि एवरी 5 years प्रेसिडेंट मस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन। प्रेसिडेंट हर 5 साल के लिए एक कमीशन बनाना चाहिए जिसका नाम फाइनेंस कमीशन होगा। इसमें मेंबर्स कौन होंगे, एक चेयरपर्सन होगा और उसके साथ कितने मेंबर्स होंगे, 4 पर्सन्स उसके साथ और मेंबर्स होंगे। इस टाइम का जो फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरपर्सन कौन है, जो नीति आयोग के सीईओ एक टाइम पर रह चुके हैं, डॉक्टर अरविंद पनगरिया, ठीक है। अब इनको रिकमेंडेशन फाइनलाइज करना था, लेकिन अक्टूबर में इनको थोड़ा सा एडिशनल टाइम दिया गया था कि आप थोड़ा एडिशनल टाइम ले लो, लेकिन अब डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी जो है वो अपना जो है वो पुटअप कर दो, ठीक है। तो अब फाइनेंस कमीशन जो है ये ऑफिशियली जो है इन्होंने रिपोर्ट, अभी कल की न्यूज में क्या आया है, ऑफिशियली दे हैव प्रेजेंटेड देयर रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। नाउ प्रेसिडेंट विल गो थ्रू द रिपोर्ट एंड देन इट विल बी पुट टू इन फ्रंट ऑफ लेजिस्लेचर फॉर डिस्कशन, ओके। फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस मैंडेटरी होते हैं, व्हाई, बिकॉज फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो अभी रिसेंटली उसका जो एक्सटेंशन हुआ था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चेयरमैन की कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं, लेकिन इस आर्टिकल को प्रैक्टिकल शेप देने के लिए हमने एक लॉ बनाया, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंस कमीशन एक्ट ऑफ 1951। फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951। इस एक्ट ने क्या कहा कि जो चेयरमैन होना चाहिए, ही मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स एंड पब्लिक फाइनेंस। चेयरमैन मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन पब्लिक फाइनेंस। Chairman must have experience in public finance and public affairs. The 4 members
are selected people who are as government finance, accounts, financial administration, economics और हाई कोर्ट जजेस. ठीक है. 4 दूसरे मेंबर्स जो है उनके लिए कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है. पब्लिक फाइनेंस में वो एक्सपर्ट हो एंड एक्सपर्ट्स. ओके. देन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है. ठीक है. या हाई कोर्ट जज के लेवल का किसी के पास एक्सपीरियंस है. तो कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस नहीं है इसके मेंबर्स की, लेकिन ये कुछ चीजें हैं. ठीक है. अब ये मैंने आपको बताया, इन चीजों पे बात करती है. और आर्टिकल 275 के अंडर अगर आपको पता हो, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 275 क्या कहता है? इट डील्स विद ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स, कि स्टेट्स को कितनी ग्रांट्स मिलनी चाहिए सेंटर से. इट इज ऑल्सो द रिकमेंडेशंस ऑन दिस आर ऑल्सो गिवन बाय फाइनेंस कमीशन और ऑल्सो गिवन बाय फाइनेंस कमीशन. समझ में आ गया आपको? सो दिस इज ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड यू मस्ट नो अबाउट टूडेज न्यूज एनालिसिस. गेट द पॉइंट? येस्टरडे आई लेफ्ट वन स्मॉल न्यूज, आज उसके बारे में सुन लो. वो आपको वैसे ही सबको पता है. ठीक है. लेकिन जस्ट कल क्योंकि मैंने एक न्यूज बताया था, टाइम मिलेगा तो मैं डिस्कस करूंगा. छोटा सा न्यूज है. सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस गवाई ने एक स्टेटमेंट दिया कि आर्टिकल 32 के अंडर में सिटीजन के पास पावर है, वो डायरेक्टली मूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इस राइट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कहा गया है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ओके. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या कहता है? कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको जितने भी फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे हैं, उनके एनफोर्समेंट के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो. बाकी जो राइट्स हैं, आपके सिविल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनके लिए आपको प्रॉपर हायरार्की में चलना पड़ेगा. पहले लोअर कोर्ट में चैलेंज करो, फिर हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट के डबल बेंच में. अगर वहां जस्टिस नहीं मिला फिर सुप्रीम कोर्ट में. लेकिन फंडामेंटल राइट्स के लिए यू कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट और आप अपने वहां पे राइट्स के लिए चैलेंज कर सकते हो. ठीक है. मोर ओवर इसी आर्टिकल को यह कहा गया कि ये अंबेडकर के विजन का रिफ्लेक्शन है. इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ the father of constitution, chairman of drafting committee, Dr. B.R. Ambedkar. Okay. Dr. B.R. Ambedkar called this article as heart and soul of the constitution. Heart and soul of the constitution. अगर ये आर्टिकल नहीं होता, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में कहा कि विदाउट आर्टिकल 32 द कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव बीन अ नलिटी, जीरो. कुछ भी इस आर्टिकल का फायदा नहीं था. समझ में आ गया आपको? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. एनीथिंग कमिंग अप आई विल बी डिस्कसिंग टुमारो. और इंडियन एक्सप्रेस से मुझे कुछ चीजें डिस्कस करनी है, मे बी अ शॉर्ट वीडियो लेटर ऑन. ठीक हो गया? इंडियन एक्सप्रेस में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, मे बी स्मॉल वीडियो लेटर ऑन. ठीक है. ज्ञान फॉर द टुडे. इट इज टाइम फॉर द ज्ञान. ज्ञान का मतलब सम अपार्ट फ्रॉम स्टडीज. ठीक है. एक शेर है, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो. न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स वो आपको एनालिसिस देती है जो बुक्स नहीं देती. ठीक है. तो अब किताबों से हटकर एक ज्ञान की बात बताता हूं. ठीक है. यूज योर टाइम वेरी जुडिशियसली. ठीक है. अपने टाइम को बहुत जुडिशियसली यूज करो. वाई? बिकॉज मेरे फादर कहते थे कि अक्लमंद और बेवकूफ में बहुत ही छोटा फर्क है. वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन वाइज पर्सन एंड अ स्टूपिड पर्सन. टाइम गुजरता है, वक्त गुजरता है. टाइम हैज टू पास बाय. अक्लमंद वक्त का फायदा उठाता है, बेवकूफ वक्त का फायदा नहीं उठा पाता. ठीक है. सो बी द वाइजर वंस. टेक एडवांटेज ऑफ ईच एंड एवरी सेकंड ऑफ योर लाइफ. लाइफ इज प्रीशियस. रेस्पेक्ट द टाइम. स्पेंड इट वेल. यू विल नॉट गेट इट अगेन. थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू टुमारो अगेन with further news analysis. Thank you.